Hello everyone dear students. Assalamu alaikum dear students. How are you? Dear buddies, hopefully that you are great now students. So students, today we are going to discuss about the second lecture regarding the MDCAT test series. We have already recorded the first lecture regarding the new strategy, new syllabus, new criteria, new aggregate, because the MDCAT test series preparation has some kind of little bit change now. Quantity of the MCQs, aggregate and the percentage. So we have already discussed in the first lecture new syllabus. So today, dear students, we are going to dive into another important session regarding the English syllabus. In MDCAT, English syllabus, new criteria, we are going to discuss about the new strategy, English syllabus, new kind of the MCQs, new quantity of the MCQs, because as you know, a very important role English play in the MDCAT preparation. So this is a very important and vital role English regarding to the MCQs preparations. So the quantity of the MCQs of English total almost 9, a new criteria 2025. But now we are to discuss about the new contents, new area of the all the preparation of the English syllabus. So let's get dive into an important English lecture regarding the MDCAT test series English syllabus. So you should have to pay attention now. So students, as you know on the board, we have 4 parts of the MDCAT English syllabus, MDCAT English syllabus 2025. In the first part, we will discuss about all the important topics which is included to be the 2025 English syllabus MDCAT preparation. And the second one, we are going to discuss about the reading and thinking skills. And the third one is the formal and the lexical aspect of the language. And the fourth one is writing skill. These are the 3 to 4 major parts which is to be included in the MDCAT preparation regarding to the 2025 new syllabus. So student, hopefully आपको बातें क्लैरिफाई हो रही होंगी. ये सेकंड लेक्चर है MDCAT की प्रिपरेशन का. पहले लेक्चर में हमने तमाम सिलेबस को डिस्कस किया, न्यू क्राइटेरिया को. अब हम इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए ज़रूरी हैं MDCAT का स्कोर और MDCAT का टेस्ट क्लियर करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टोटल MCQs. डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के अंदर टोटल 9 MCQs इंक्लूड किए गए हैं 2025 MDCAT के अंदर. टोटल 9 MCQs विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हालांकि स्टूडेंट 2017-18 में यही 30 MCQs हुआ करते थे MDCAT के अंदर. फिर 2021-22 में ये हो गए थे 18 MCQs, जबकि 2025 के अंदर यही इंग्लिश के जो हमारे MDCAT के MCQs हैं वो 9 इंक्लूड किए गए हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्कोरिंग वेल इन MDCAT. सेकंड स्टूडेंट, लिस्ट वोकैब प्रोवाइड द सिनोनिम एंटोनिम. अब यहाँ पे कोई इतनी खास लिस्ट भी प्रोवाइड नहीं की गई है सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में. थर्ड वन स्टूडेंट हम बात करेंगे अभी टू टॉपिक. थर्ड वन हमारी मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द MDCAT प्रिपरेशन. फोर्थ वन, फिगरेटिव लैंग्वेज. स्टूडेंट ऑलमोस्ट अब ये चीज़ भी ऐड कर दी कि जो हम न्यू कह सकते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज भी ऐड की गई है MDCAT की प्रिपरेशन के अंदर. एंड द फिफ्थ वन इज डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग. डिफिकल्ट मीनिंग ऐड किए गए हमारे. प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट. कुछ चीज़ें स्टूडेंट हमारी ऑलरेडी पुरानी ही हैं. आप लोगों ने थोड़ा सा देख के घबराना नहीं है कि शायद MDCAT के अंदर इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है. नो स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है. एज यू नो, ग्रामर कभी चेंज होती ही नहीं है. हाँ, थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर दिया गया है, चीज़ों को वर्ड चेंज कर दिए गए हैं, थोड़ा सा न्यू वर्ड्स के जरिए चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया गया है, MCQs की क्वांटिटी को कम कर दिया गया है. अगर आप ये लेक्चर मेरा गौर से सुन लेंगे तो आपके इंग्लिश के अंदर जितने भी आपके नोशंस हैं, जो फॉल्टी नोशंस हैं, जितने भी इंग्लिश के बारे में आपके माइंड में डाउट्स हैं, वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा. MDCAT प्रिपरेशन के लिए जस्ट 9 MCQs करने हैं आपने न्यू क्राइटेरिया सिलेबस 2025 MDCAT के अंदर इंग्लिश के. नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे टेंसेज इंक्लूड हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बात कर ली, एंटीसीडेंट हो गया प्रोनाउन का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फिर हमारे फ्रेज, क्लॉजेज, एरर ऑफ फंक्शन एंड द स्पेलिंग्स भी हैं. अब एज यू नो 2020 में भी स्पेलिंग के MCQs ऐड दिया गया था. स्पेलिंग आपने करेक्ट करने थे. अभी भी स्पेलिंग ऐड है. क्लॉज, फ्रेजेस, एरर ऑफ फंक्शन है. फिर सेंटेंस इन अ वेरियस काइंड, डिफरेंट काइंड के सेंटेंस होंगे. फिर जेरंड एंड फ्रेजेस हमारे हैं. वॉइसेस, डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, ये तो आप लोग ऑलरेडी पता है. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट इंक्लूड होते ही हैं MDCAT के अंदर. फिर एडवर्ब्स हमारे हैं, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन. अब सुनिए यहाँ पे थोड़ा सा यू हैव टू पे अटेंशन नाउ. हमारी प्रेपोजिशन ऐड की गई है, इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, अबव. these all और द प्रेपोजिशन जो इंक्लूड है MDCAT के अंदर. सेकंड, हमारी स्टूडेंट पंक्चुएशन भी ऐड की गई है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. कॉमा, कॉलन एंड सेमी कॉलन का यूज़. कॉमा, कॉलन एंड सेमी कॉलन का यूज़ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द न्यू क्राइटेरिया सिलेबस ऑफ MDCAT इंग्लिश.
फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये स्टूडेंट आपको पता ही है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर है उनकी करेक्शन के बारे में होता है। और लास्ट एक नई चीज़ ऐड की गई है एमडी कैट इंग्लिश सिलेबस के अंदर, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ये मैंने लिखा भी है ऑलरेडी, ये एक न्यू चीज़ ऐड की, ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी ऐड कर दी गई हैं। सो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं विच इज़ रिगार्डिंग टू बी द एमडी कैट इंग्लिश सिलेबस 2025। नो वी आर गोइंग टू डाइव इनटू अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, मूव ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। इसके अंदर स्टूडेंट आपने देख लो कि हमने 3 पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एमसीक्यूज आएगा रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल के पार्ट में। आगे है हमारा फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है, एंड द थर्ड वन इज राइटिंग स्किल। स्टूडेंट ये 3 पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिए हैं जो कि एमडी कैट इंग्लिश सिलेबस 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्राइटेरिया हैं, 3 एस्पेक्ट ऑफ बन रहे हैं कि इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं 2025 के एमडी कैट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल you should have to pay attention now what to study। रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल के अंदर हमें किस टाइप का एमसीक्यूज आएगा और हमने क्या समझना है। स्टूडेंट इसके अंदर आएगा हमारी प्रैक्टिस स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। हमारी सबसे पहली बात आएगी स्टूडेंट के अंदर हमारी प्रैक्टिस स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, फोकस ऑन आइडेंटिटी नेम एंड डेट्स एंड द फैक्ट्स। आप गौर से देखिएगा, आपको फोकस करना होगा नेम, डेट्स, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर। सो लेट्स टेक द एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं। For example, Dr. Amna discovered a new vaccine in 2022 that reduced viral infection by 30%. अब स्टूडेंट एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन व्हाट टू बी स्टडी कि सर हमारा रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल के अंदर किस टाइप का एमसीक्यूज आएगा। तो यहाँ पर देखें आपको फोकस करना होगा फैक्ट्स, फिगर और डेट्स के ऊपर। और इस एमसीक्यूज के अंदर जो हमारा एमडी कैट का इंग्लिश सिलेबस की रिकॉर्डिंग है, देखिए डॉक्टर आमना डिस्कवर द न्यू वैक्सीन इन 2022। अब यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है डॉक्टर आमना ने 2022 में एक वैक्सीन डिस्कवर की थी जिसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन 30% रिड्यूस होगा। सो 4 ऑप्शन होंगे, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अब लुक एट द अल्फा 2022। तो क्या हमने जो हमारे बात की है फोकस आइडेंटिटी, नेम, डेट एंड फैक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे हम डेट पे फोकस करेंगे। डॉक्टर आमना ने 2022 में जो क्या किया था वैक्सीन डिस्कवर की थी। तो यहाँ पे हमारा अल्फा में 2020 है, बीटा में 2021 है, चार्ली में 2022 है। सो वी कैन से नाउ द चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट। सो यू स्टूडेंट हमारा रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल के अंदर इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे जो कि हमारे एमडी कैट इंग्लिश सिलेबस 2025 के अंदर आएंगे। सेकंड पार्ट पे देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होगा, व्हाट टू डू स्टडी नाउ। इसके अंदर स्टूडेंट हमारे गेस, मीनिंग्स, अनफेमिलियर वोकैब बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट होंगे। स्टूडेंट दोबारा गौर कीजिएगा, गैस, मीनिंग, अनफेमिलियर वोकैब बेस्ड कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन होंगे। लुक एट द एग्जांपल नाउ, द लॉयर्स meticulously attention to detail help win the case। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, द लॉयर मेटिकुलसली, यहां पर एक वर्ड है मेटिकुलसली, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द गैस मीनिंग अनफेमिलियर वोकैब बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जिसको हमने गौर से पढ़ना और समझना है। द लॉयर मेटिकुलसली अटेंशन, वकील ने क्या किया मेटिकुलसली। अब मेटिकुलस का हमें यहाँ पे मीनिंग फाइंड करना है और उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ इस कॉन्टेक्स्ट को, अटेंशन टू डिटेल हेल्प द विन, कि लॉयर ने किस तरह से अटेंशन देकर पूरे डिटेल के साथ हेल्प ली और अपना केस जीता। सो अल्फा इज द केयरलेस, बीटा इज द क्विक, चार्ली इज द डिटेल एंड द एग्रेसिव। सो देयर आर द 4 ऑप्शन। तो हमने मेटिकुलस का मीनिंग ढूंढना है जो इसके बिल्कुल करीब और सेम लग रहा हो। सो स्टूडेंट ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट। इट्स मीन मेटिकुलस मीन डिटेल। So the liar detail, meticulous mean detail, attention to detail help win the case. So the option Charlie is the correct. So these type of the question, formal and the lexical aspect of language में आ सकता है। The third one is writing skill। हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एमडी कैट का न्यू सिलेबस इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो थर्ड टाइप में देखेंगे राइटिंग स्किल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। राइटिंग स्किल में स्टूडेंट देखते हैं व्हाट टू द स्टडी। वर्ड टू स्टडी में फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमारे रॉन्ग सेंटेंस हमें दे देंगे फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेकंड हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टाइप पे क्वेश्चन आएगा। थर्ड हमारा आएगा कॉमन ग्रामर मिस्टेक, कॉमन ग्रामर मिस्टेक पे क्वेश्चन आएगा। फोर्थ वन स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर भी हमारा आ सकता है राइटिंग स्किल्स के पोर्शन के अंदर। लेट्स लुक एट एग्जांपल नाउ। एग्जांपल में देखिए ईच ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, ईच ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। सो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया आर। अब स्टूडेंट हमारे पास 4 ऑप्शन है। अल्फा में लिखा हुआ है ईच, बीटा में है आर,
चार्ली में है बॉयज एंड द डेल्टा में है प्लेइंग। सो स्टूडेंट यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज अंडरलाइन वर्ड के आर, तो आर के साथ कौन सा मैच करता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट आर, बिकॉज आर शुड बी इज, वैसे हमारी बी फैमिली होती है इज, एम, आर, वॉज वगैरह, तो बीटा ऑप्शन आर इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर गुड बनता है, जो कि बी फैमिली का हिस्सा है, शुड बी इज होता है, यहाँ से निकलता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था। सो स्टूडेंट होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दिस इज द सेकंड लेक्चर रिगार्डिंग द एमडी कैट टेस्ट सीरीज। होपफुली दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर फॉर यू बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द एमडी कैट लेक्चर सीरीज। स्टूडेंट अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने एमडी कैट के स्कोर के लिए और अच्छा स्कोर करके आप एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ अच्छे माहौल के साथ पढ़ के अच्छी स्ट्रेटजी अपनाकर अपना गुड स्कोर करके अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं, तो आपको इस जितने भी मैं लेक्चर आपको ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ इस पर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, आपको तमाम स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। सो कीप स्टडी, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।